وہ جو کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کرے گا باہر نکلتا ہی بتا دے گا اس کی کیا مجھے ضرور بتاتا ہے کہ اللہ یہ کہتے تھے نا سلیکٹڈ وزیر اعظم، یہ واقعی سلیکٹڈ ہے پر اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے فار دس. تو انشاءاللہ اس طرح کے بہت اچھے پروگرام ہمارے زیر اور آپ نے بڑا اچھا یہ آئیڈیا دیا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے یہ ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی ہی سیکرٹ لیول پہ ہوتی ہیں اور یہ تیسری بار ہوا ہے ایک جہاز میں فنی خرابی یہ وہ، لیکن وہ بھی کوئی ایسا ان کو پسند کرنے والے ہیں یا نہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ خان صاحب کو لمبی زندگی دے. انہوں نے جو عوام کے اندر اویئرنیس دی ہے نا یہ پچھلے 70 سال میں کسی لیڈر نے نہیں دی. تو اب چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے وہ دوسرے لوگ ہیں وہ خان صاحب کے پیچھے ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ دیا آپ نے خان صاحب کو کہ یہ جو بلائیں آئیں جنات آئیں جو باہر سے منحوس لوگ آئیں وہ خان صاحب کے قریب نہ آئیں؟ کیونکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے. نون لیگ کے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ خان صاحب نے جو اویئرنیس دی ہے نا یہ ہمیں کہیں نہیں ملی. ہم ابھی بھی بے شک نون لیگ کے ہیں لیکن خان صاحب نے بڑی اویئرنیس دی ہے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے ان کو کیا وظیفہ دینا ہے یا میں کس قابل. ایون ہماری خاتون اول سے میری ایک بار بڑی گفتگو ہوئی، بڑی اللہ والی ہیں، بہت عبادت گزار ان کی ہستی ہے. وہ کہتی تھی میں سمجھتی تھی میں عبادت گزار ہوں اور بڑی ہوں، کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس آدمی سے بھی بڑا کوئی درویش ہے آج کے دور کا. میں عمران خان جو آج کے دور میں جو تمام طاقتوں کے خلاف ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا سچ کے ساتھ، نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے نہ وہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ کرتا ہے، اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے اور اللہ ہی اس کا محافظ دے. دیکھیں اللہ نے کام لینا ہوتا ہے کس سے، اور مجھے یہ یقین ہے، میرا یہ ویژن مجھے ضرور بتاتا ہے کہ اللہ یہ کہتے تھے نا سلیکٹڈ وزیر اعظم، یہ واقعی سلیکٹڈ ہے پر اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے فار دس کاز، اور میرے پاکستان کی سلامتی کے لیے، میرے پاکستان کی سربلندی کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے. اچھا میم، ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جو لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے جلسے کروائے، دھرنے کروائے، خان صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، تو اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے اور جلسے بھی بڑے بھرپور زور و شور سے ہو رہے ہیں، الیکشن بھی جیتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے وہ سیاستدان جو کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آتا ہے، ایک ہوتا ہے لیڈر جس کے ساتھ اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے، اور وہ طاقت آج عمران خان کے ساتھ ہے. کسی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کسی اداروں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مجھ سے بحث ہو رہی، آپ یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، ادارے آپ کے خلاف ہیں، پر اس ٹائم پنجاب میں حکومت ہمارے نہیں تھی، یہ ہے سارا اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، آپ الیکشن. اور میں لوگوں کی طرف دیکھ کر بڑی حیرت سے کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے آپ کے ایمان میں کچھ کمی بیشی ہے. میں کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک ہستی آپ بھول رہے ہیں، وہ رب العزت کی ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اوپر اللہ کی طاقت، نیچے عوام کی طاقت. یہ دو طاقتیں جس کے پاس ہوتی ہیں نا وہ انبیٹیبل ہوتا ہے. اور اس ٹائم عمران خان جو ہے نا وہ انبیٹیبل ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اس مقصد کے لیے چوز کیا ہے. وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، وہ عوام میں شعور پیدا کر رہا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق دکھا رہا ہے، اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا. میں بتاؤں ہر دور میں ہر بار کربلا رونما نہیں ہوتی، لیکن دور کربلا والا ہی ہے. یہ دیکھیں حسینیت اور یزیدیت کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، یہ ایک جذبے کا نام ہے. جو لوگ حق پہ کھڑے رہتے ہیں وہ حسینیت پہ قائم رہتے ہیں. یزید ہر دور میں ہوتا ہے، آج یہ 14 جماعتیں یزید بن کے کھڑی ہیں. تو یہ آج سمجھیں حق اور باطل کا یہ ایک مارکا ہے جس میں یہ وہ وقت ہے جو فتنے کا دور ہے، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں کہ جب نوٹوں کی بوریاں کھول دی جائیں گی اور لوگ جو نوٹوں کی طرف لپکیں گے، لیکن اس ٹائم وہ لوگ جو حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے وہی فلاح پانے والوں میں سے ہیں. تو الحمدللہ میں اللہ کا علی لاکھ بار شکر ادا کرتی ہوں، سجدہ ریز ہوتی ہوں. جب لاسٹ ٹائم یہ ایم پی ایز کا جب ہو رہا تھا خرید و فروخت والا معاملہ، لاسٹ ڈے کی آفر ایک ایم پی اے کے لیے پتہ کیا تھی؟ 1 ارب 25 کروڑ. 1 ارب 25 کروڑ. اب میں اللہ کا اس دن ہم نے اتنا شکر ادا کیا، ہم سب جو بہنیں بھائی اکٹھے تھے، ہم نے کہا میرے رب میں تیرا کس طرح کرم ادا کروں کہ اتنے اماؤنٹ سے بھی میرے ایک ذرہ، ایک بال کی باریک جتنی بھی کچھ دل میں
गुजरा हो, इतना सुकून था, इतना इत्मीनान था, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखते। ऐसे ही है। और अल्लाह जब आपके दिल को सुकून देता है ना सच पे खड़ा होने का, उसका मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, खान साहब की दरवेशी की बात कर रहे थे, तो इस दरवेशी पर दो सवाल हैं। एक तो ये कि अभी हेलीकॉप्टर उनका जब ख़राब हुआ तो इंतहाई गली मोहल्ले के बेचारे वो बच्चे, गरीब बच्चे खेल रहे थे, ना किसी ने पीटीआई का झंडा पहना होता, और खान साहब सबसे खंदा पेशानी से मिल रहे थे। ये तो है उनकी दरवेशी की एग्जाम्पल। अच्छा, हम उस वक्त किसी जगह पे इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने यही सवाल किया जो मैंने आपसे किया कि खान साहब की जान को ख़तरा है, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो वो हेलीकॉप्टर के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अब वो नेचुरली टेक्निकल फॉल्ट था या किसी ने कोई शरारत की थी, उसके बारे में अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। देखिए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ही सीक्रेट लेवल पे होती हैं, और ये तीसरी बार हुआ है एक जहाज़ में फनी खराबी, ये वो। लेकिन वो भी कोई ऐसा बहादुर माँ का बेटा है जो किसी चीज़ से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। वो कहता है, मैं वही कह रही हूँ, ये सुकून सिर्फ उस बंदे के दिल में होता है जिसे पता होता है कि वो सही रास्ते पे है। वो जो कहते हैं ना खान हमेशा कि जो कलमा पढ़ लेता है वो उसके दिल से खौफ का नफ़ी हो जाती है, जो हकीकी मायनों में कलमे को समझ के पढ़ता है। वो शख्स ने वो पढ़ा हुआ है, वो निकला हुआ जहाद पे, वो उसने सब कुछ पीछे छोड़ा हुआ है, अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगी, अपना घर बार। वो ऐसा कोई दरवेश आदमी है, अल्लाह की राह पे निकला है। वहाँ देखे आम आवाम में निकले ना, ऐसे कोई उतरे, काश इनमें से किसी का हेलीकॉप्टर खराब क्या हो। लीडर तो दूर की बात है, इनका एमएनएमपी नहीं ऐसे निकलता, निकले ऐसे आवाम में, बच्चे कैसे गिर्द खड़े हो गए। ये होता है वो सिक्योरिटी हटा रही और खान कह रहे नहीं आने दो यार, आने दो। ये जो लोगों के दिलों में रहता है, असल फतह जो है ना, वो लोगों के दिलों को फतह करना है। अच्छा, मुझे लगता है वो जो बच्चे थे ना जिनसे खान साहब ने हाथ मिलाया, मिले, सवाल जवाब किया, मुझे लगता है वो भी उन्होंने कोई अल्लाह से ना कोई दुआई की होगी कि अल्लाह खान से मिलवा दे, कि खान वहाँ खुद उतरा, खुद पहुंचा, सिक्योरिटी हटा रही, कहते नहीं यार आने दो। और मुझे तो कितने लोगों ने कहा, हमारे पार्टी के, हमारे मिलने वाले इतने फैन हैं, वो कहते हैं हाय काश ऐसी कोई हम खेल रहे हैं और खान आ जाए, और खान इसे आ जाए। तो लोग देखें इस शख्स से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं 18-19 साल से उनके साथ हूँ। हर बार जब मिलती है उनके, मुझे मिलने की वो एक्साइटमेंट होती है, उनकी हल्की सी थपकी, उनकी हल्की सी इंकरेजमेंट मेरा हौसले को कोई 1000, 200, 2000 गुना बढ़ा देती है, मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट कर देती है। ऐसी शख्सियत है जिसको देख कर ही जो है ना आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाती है। तो अल्लाह ने क्रिज्मा जो दिया ऐसे तो नहीं दिया ना। एक जगह हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, खान साहब आए हुए थे, अल्लाह हमारा आठ था शायद, तो मेरे साथ ना 2-4 और भी मीडिया के दोस्त थे, वो किसी और जमात के पक्के सपोर्टर हैं, लेकिन मैं जहाँ जाऊँ तो मेरे साथ आते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा है, जिन है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं इससे पहले जीसी यूनिवर्सिटी थे, जीसी यूनिवर्सिटी से पहले ये कहीं और थे, कल ये किसी और शहर में थे, आज इन्होंने यहाँ से लाहौर से फिर बाहर जाना है। 11 इवेंट तो मेरे साथ करके देखे। ये खाते क्या हैं? हम रोस्ट हो जाते थे, और वो शख्स का स्टेमिना, उम्र देख लें, चेहरे पे हशाशियत देख लें, इंतहाई सॉरी मैम, ये अच्छा बोले हैं। अच्छा, इंतहाई सादा खुराक खाते हैं लेकिन एनर्जेटिक, वर्जिश करते हैं। देखिए ये साफ दिल का जो आदमी होता है ना, साफ जहन का, झूठ मकार, पता नहीं किसी ने कहा कि भी ये खान की वो वीडियो लीक और ये हो जाएगी, ऑडियो लीक, ये वो फवाद चौधरी का जवाब मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा उसकी क्या लीक करनी है, वो जो कमरे में बैठ के गुफ्तगू करेगा बाहर निकलता ही बता देगा। उसकी क्या तुमने ऑडियो लीक करनी है। इज सच अ क्लीन एंड ओपन पर्सन। उसका कोई जिंदगी का हिडन पहलू नहीं है, माजी भी सबके सामने है, हाल भी सबके सामने है, और मुस्तकबिल इंशाअल्लाह सुनहरा है। अच्छा मैम, वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी इजलास में जाना है। मैम, आप जिस तरह एलडीए की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर शामिल हैं, तो क्या आप कोई ऐसा बिल पास करवाएंगी एलडीए की तरफ से कि जितनी भी सोसाइटियां हैं, उनके जितने भी कमर्शियल मार्केट्स हैं, वहाँ पर 5-5 मंजिला के कम से कम फ्लैट्स बनाए जाएं, ताकि ये जो हर सोसाइटी का जो मकान मालिक है वो किराएदारों के लिए एक फ़िरौन की हैसियत रखता है, और जो बाहर से लोग आते हैं खान साहब को वही सपोर्ट करते हैं। जो लोकल हैं लाहौर के, वो तो आधे से ज़्यादा जो है वो आपको पता है वो बिरयानी खाने वाले हैं, लाहौरियों के साथ मेरे माजरत, जो नहीं बिरयानी खाते वो खान साहब को पसंद। तो ऐसा बिल पास करवाएंगी ताकि एक तो किराया कम हो सके, फिर इन लोगों के जो थोड़े नखरे हैं, जो आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि पूरा पंजाब यहाँ पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए या इलाज मुआवजे के लिए आता है, और उसको मजबूरी में कहीं रहना पड़ता है, तो मकान मालिक जो है उनका रवैया किसी फ़िरौन से कम नहीं है। बिल्कुल, हम इस चीज़ को समझते हुए इमरान खान साहब का जो लो बजट
गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम है, वो भी अपार्टमेंट्स हैं, वो भी LDA सिटी में हम खुद भी बना रहे हैं। अब हमने वैसे भी शहर को जो हमारा मास्टर प्लान है जो पास हुआ है वो फैलाने से रोकना है, इसको वर्टिकल लेके जाना है, क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में अब हम वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है। इवन इसका मैं क्रेडिट लूंगी थोड़ा सा, जब हम बिल्डिंग रूल्स पास करवा रहे थे तो उसमें मैंने ये कहा था कि इवन किसी का 10 मरले का भी प्लॉट है ना, वो आपकी मेरी तरह मीडियोकर होगा ना, जो 10 मरले का अफोर्ड कर सकते हैं, उसको भी आप 5 मंजिल बनाने की इजाजत दें। वो देखिए वो उसका अर्निंग भी हो जाएगा। वो 4 फ्लोर बनाए फ्लैट्स के, नीचे वाला फ्लोर में ग्रोसरी हो, बेसिक जो चीजें नीड्स हैं वो हो, उसका भी एक जिंदगी का तरीका बन जाएगा, लोग को भी सस्ती और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। दूसरे शहरों से लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक इकट्ठे भी रह लेते हैं, अपना एक फ्लैट में शेयरिंग पे भी रह लेते हैं। तो हमें लोगों को सहूलत देनी है, ये हमारे एजेंडे में शामिल है। और बल्कि परवेज़ इलाही साहब हमारे CM साहब, CM पंजाब, वो बहुत बाज़िद हैं इस चीज़ पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओवरसीज़ हमारा असासा है। जब ओवरसीज़ आते हैं तो उनके जो जगह लेते हैं, तो अव्वल तो वो बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक पूरी सोसाइटीज़ बनाई जाएं जहां वो महफूज हों, आए तो फौरी तौर पे उनके नाम पे वो ख़रीदते हैं, उनके नाम पे मुंतकिल हो जाए, सेफ़ हो, सिक्योर हो, और उनके अपार्टमेंट्स हो, वो आए, अपना पाकिस्तान में उनका अपना एक घर हो। तो इंशाअल्लाह इस तरह के बहुत अच्छे प्रोग्राम हमारे ज़ेरे और आपने बड़ा अच्छा ये आइडिया दिया है। इंशाअल्लाह इसको भी सामने रखते हुए हम ज़रूर ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे इंशाअल्लाह। आप सादिया सुहेल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मेरे तंज़ो मज़ाह वाले सवालों का जवाब भी आपने खंदा पुशानी से दिया। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस किसी से भी सवाल जवाब करें वो माथे पर बल नहीं लाते और खंदा पुशानी के साथ सवाल लेते हैं। देखें, सहाफ़ी का काम है सवाल करना, चाहे वो सख्त हो, तंदो तो हो, लेकिन जवाब तो देना ही देना है। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम अगाए बगाए आपा के पास आते रहेंगे। आपके जो सवालात हों आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम है LD की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से, जेन्युइन इशू हो, वो मेंशन कर सकता है। हम उसका लीगल जो है वो एडवाइस मैडम से करवा देंगे ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।